خدا ان کے بابرکت نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ ہم روٹین کے مطابق آج پھر کلام مقدس میں سے دیکھیں گے لائف اینڈ منسٹری آف جیزس کرائسٹ ان کرونالوجیکل آرڈر، تعلیمات اور حیات المسیح سلسلہ بسلسلہ ترتیب کے ساتھ۔ جب خداوند چھٹے چیپٹر پہ آتے ہیں تو وہاں پر وہ جوئش ریلیجس لائف کے 3 پہلو، جو 3 سیکشن ہیں، ان کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ ان میں تھا اسپیشلی گیونگ، پریئنگ اینڈ فاسٹنگ۔ تو فاسٹنگ پر اور گیونگ پر میں نے بات کی۔ تو پریئر کا جو ٹاپک ہے اس کو اگر چیپٹر 6 میں دیکھیں، زیادہ زور جو دیا گیا ہے وہ دعا پر دیا گیا ہے، اور دعا کے بارے میں شروع سے کرسچن ورلڈ میں 2 اسکول آف تھاٹ ہیں جو آج بھی ہمارے ساتھ ساتھ چلے آ رہے ہیں۔ ایک آرمینینزم اور ایک ہے کیلونسٹکزم۔ کیلونسٹک جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو دعا ہے وہ صرف ایک سمپلی اے وے آف کمیونیکیشن ود گاڈ، اس نے جو کچھ کرنا ہے اس نے کرنا ہی کرنا ہے، چاہے آپ دعا کریں یا نہ کریں۔ دیٹ از کیلونسٹک ویو۔ اور آرمینین ویو ہے جو کہتے ہیں کہ خدا اس وقت تک کچھ نہیں کرتا جب تک آپ دعا نہ کریں۔ دونوں سائڈ ایکسٹریم پہ ہیں، اور اسی لیے اکثر اوقات یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ واٹ از دا ٹروتھ، کیونکہ بائبل میں ہمیں ایسا بھی ہم دیکھنے میں ملتا ہے کہ لوگوں نے دعا کی، روزہ رکھا، اور لگتا ہے کہ جیسے خدا نے اپنا ارادہ بدل دیا، ہی چینج ہز مائنڈ اور ڈائریکشن، شاید وہ ویسا نہ کرتا جیسا اس دعا یا روزے کی وجہ سے ہوا۔ اور ایسا بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر دعا کی گئی اور خدا کی طرف سے جواب یہ آتا ہے کہ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو واٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو اینی وے۔ سو اس ٹاپک کو پورے طور پر سمجھنا اٹس ناٹ ایزی۔ سو دا مسٹری آف پریئر از ڈیفیکلٹ ٹو سالو۔ ایک خدا کا خادم ہے جیمس بوائس، وہ اس ڈیفیکلٹ ٹاپک پر بات کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ ایک ایسا وقت تھا جس وقت جارج وٹ فیلڈ جو کہ کیلونسٹ تھا، اور جان ویزلی جو آرمینینزم پر ایمان رکھتا تھا، تو ان کی جو اس وقت اپنے کہہ سکتے ہیں دور میں جب کہ ان کی منسٹری عروج پر تھی، اتفاقاً ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بوتھ ایونجلسٹ ور پریچنگ اینڈ رومنگ ٹوگیدر ان سیم بورڈنگ ہاؤس۔ ایک ہی جگہ پر ایک ہی روم میں ان دونوں کو اکٹھے رہنے کا موقع ملا۔ تو ایک شام کیا ہوا کہ دونوں اپنی دن بھر کی ایکٹیویٹی سے واپس لوٹے، تھکے ہوئے تھے، تو کھانا وانا کھا کے جب اپنے کمرے میں گئے تو سونے سے پہلے دونوں اپنے بیڈ سائڈ پہ نیل ڈاؤن ہو کے تو انہوں نے دعا شروع کی۔ تو جو وٹ فیلڈ تھا کیلونسٹک، اس نے اس طرح دعا کی، اس نے کہا خداوند میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے کہ جن کے ساتھ ہم نے آج تیرا کلام شیئر کیا۔ آئی ایم گلیڈ، آئی ایم ریجوائسنگ۔ ان کی زندگیاں، ایون ان کی جو منزل ہے، ان کا انجام ہے، دیٹ از ٹوٹلی ان یور ہینڈ۔ بلیس دا ایفرٹ آف یور سرونٹ ود یور پرفیکٹ ول، آمین۔ اس نے یہ کہا، اٹھا اور اپنے بیڈ میں لیٹ گیا۔ جو اس کے ساتھ تھا ویزلی، جو بھی اپنی دعا کا انووکیشن ہی ابھی سٹارٹ ہی کر رہا تھا، اس نے اپنا سر اٹھا کے اس کو کہا مسٹر وٹ فیلڈ، از دس ویئر یور کیلونسٹک لیڈ یو؟ اور وہ چپ کر کے سو گیا اور اس نے دعا شروع کر دی۔ اور تقریباً 2 گھنٹے کے بعد، آفٹر 2 آورس، جو وٹ فیلڈ تھا سویا ہوا تھا، اس نے اپنی سائڈ چینج کرنے کے لیے چینج کی تو اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ جان ویزلی ابھی تک گھٹنوں پہ سر رکھے ہیں، اپنے بیڈ سائڈ پہ جھکا ہوا ہے اور کھراٹے پہ کھراٹے مار رہا ہے، ساؤنڈ اسلیپ۔ اس نے اس کو کندھے سے لا کے کہا مسٹر جان ویزلی، از دس ویئر یور آرمینین لیڈز یو؟ میرا مطلب کہنے کا ہے کہ the greatest of men could not solve the divine mystery of prayer, how a human can pray with the perfect will of God۔ کس طرح پورے طور پر خدا کی کامل مرضی کے مطابق دعا کر۔
व्हाट इज द परफेक्ट विल ऑफ गॉड। इस दुआ के टॉपिक को पूरे तौर पर समझना इट्स नॉट इजी, इट्स डिफिकल्ट। और ना ही मैं आज यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए खड़ा हूँ। बट वी मस्ट नीड टू नो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द बाइबल अबाउट प्रेयर। हमें किस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, बाइबल हमें इस बारे में क्या सिखाती है। सो अब हम आते हैं मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 5, जहाँ पर हम खुदावंद के अपने पाक होंठों से इस दुआ के बारे में कुछ तालीम पाएंगे। तो मेरे साथ निकालें मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 5 से मैं पढ़ूंगा। और जब तुम दुआ करो तो रयाकारों की मानद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाज़ा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बक बक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी। बस उनकी मानद ना बनो, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन किन चीज़ों के मोहताज हो। आमीन। आप कह सकते हैं कि दिस इज द न्यू प्रेयर लॉर्ड इज गोइंग टू टीच, जिसको हम कहते हैं दुआ रबानी। लेकिन एक्चुअली ये जो दुआ है ये टोटली न्यू नहीं है। आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि यहाँ पर खुदावन ने जो जूइश प्रेयर का पर्सपेक्टिव है उसको एक नई और रिच मीनिंग दी है कि किस तरह एक्चुअली खुदा चाहता है कि दुआ की जाए। क्योंकि जूइश जो थे वेरी मच ओबीडियंट टू प्रेयर, क्योंकि खुदावंद खुद कहते हैं कि आई एम जस्ट कमिंग टू अफर्म द ओल्ड टेस्टामेंट, आई एम हेयर जस्ट टू रिमाइंड यू ऑफ द प्योरिटी ऑफ व्हाट गॉड वांट्स। जूइश जो हैं उनका जो खास एक प्रेयर के बारे में बिलीफ है, क्योंकि जूइश बिलीव करते हैं कि गॉड रियली वांट अस टू कम टू हिम, कि खुदा चाहता है कि लोग उसके पास आएं। दैट इज द फर्म बिलीफ ऑफ जूइश। दे डिडंट जस्ट कम टू गॉड लाइक अ पेगन्स, खौफ के साथ इन फियर अपने देवी देवता के पास जाते हैं। इवन साम 145:18 में लिखा है, खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। द लॉर्ड इज नियर टू ऑल हु कॉल अपॉन हिम। साम 91:15 में लिखा है, वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। सो मतलब कहने का है सिंपली टू ओबे एंड सो टू इट। चाहे इस मिस्ट्री को समझ सकें या नहीं कि ये किस तरह काम करती है, खुदा चाहता है कि हम उस पर ओबीडियंट होकर अमल करें। खुदा चाहता है कि तुम्हारी आवाज़ को, तुम्हारी क्राई को, तुम्हारे दिल की चीख को और आवाज़ को सुने। वो उनकी दुआओं को सुनना चाहता है। He wants people to come to me, ask me, call upon me। और ये इस यकीन के साथ जूइश दौड़े खुदा की तरफ जाते थे। ये ट्रू जूइश की जो असल रबाई थे उनका जो पर्सपेक्टिव था। नो ट्रू जू विद द राइट स्पिरिट एवर डाउटेड प्रियोरिटी ऑफ प्रेयर। वो समझते थे कि प्रेयर वॉज नॉट जस्ट कम्युनिकेशन बट दैट इट वॉज अ माइटी वेपन। हम पढ़ते हैं अक्सर के दुआ जो है वो एक हथियार से कम नहीं है। साम 65:2 में लिखा है, ऐ दुआ के सुनने वाले सब बशर तेरे पास आएंगे। मुबारक है वो आदमी जिसे तू बरगजीदा करता है और अपने पास आने देता है ताकि वो तेरी बारगाह में रहे। इसमें आइडिया है कि वो बिलीव करते थे कि खुदा दुआओं को सुनता है। जब बाल की और एलिया की जो वो आपस में वहां पर इन
काउंटर हुआ तो मुझे नहीं यकीन कि बाल के पुजारियों को इस तरह की ही यकीन था कि बाल इज रियली लिसनिंग टू देम। इसीलिए एलिया उनको बार बार पुश करता है कि उनको जोर से पुकारो और पुकारो और पुकारो। शायद वो सो रहा हो, सब उसको आवाज नहीं जा रही, शायद वो रास्ते में हो। लेकिन जूश का ये बिलीव था कि गॉड वांट अस टू कम टू हिम एंड ही हियर्स आवर प्रेयर। दैट इज अ फर्म बिलीफ ऑफ जूश। और उनका ये भी यकीन था कि प्रेयर शुड बी कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट। नॉट ओनली दुआ को लास्ट चांस देखो, जब आप डेस्परेट हो जाओ तो उस दुआ के अलावा कोई चांस नजर आए, कहते नो। और दे वर ट्राइंग टू टीच द पीपल टू अवॉइड प्रेइंग ओनली व्हेन यू गेट डेस्परेट। बल्कि ये क्या है, ये उनकी लाइफ स्टाइल होना चाहिए। वो चाहते थे कि प्रे ऑल द टाइम। एक रबी की टीचिंग थी, वो कहता था ऑनर द फिजिशियन बिफोर यू हैव नीड ऑफ हिम। तो खुदा हमारा सबसे बड़ा फिजिशियन है। सो जूस नॉट ओनली प्रे जस्ट लाइक एन इमरजेंसी अपील, बल्कि वो कहते थे जैसे अनब्रोकन कन्वर्सेशन बिल्ट अराउंड अ लिविंग लविंग फेलोशिप विद गॉड। एक और चीज थी कि उनका ये भी बिलीव था कि प्रेयर के लिए जब हम खुदा के सामने खड़े होते हैं तो सिर्फ दुआ का माइंड लेके नहीं जाना, उसके साथ सर्टन एलिमेंट्स थे जो वो इम्पोर्टेंट समझते थे, इनकॉर्पोरेट विद प्रेयर। और मैं उनके लिए चंद मिसालें देना चाहता हूँ। फर्स्ट, जब वो जाते थे वो समझते थे कि लव एंड प्रेज इज इम्पोर्टेंट व्हेन यू प्रे, दैट व्हेन यू गो टू गॉड देयर आउट टू बी अ सेंस ऑफ वर्दीनेस एंड अ लविंग एडोरेशन एंड प्रेज। और ये कहाँ से लिया उन्हें? Psalm 34:1, उसमें लिखा है मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूंगा, उसकी सताइश हमेशा मेरी जुबान पर होगी। इन दिस सेंस यू आर गोइंग, आई विल ब्लेस द लॉर्ड ऑल द टाइम, हिज प्रेज शैल कंटिन्यूली बी इन माई माउथ। Psalm 51:15 में लिखा है खुदावंद मेरे होंठों को खोल दे तो मेरे मुंह से तेरी सताइश निकल गई। और ये उनका बिलीव था कि जब भी आप खुदा के सामने हाजिर हों, प्रेयर में प्रेज एंड लव शामिल होना चाहिए। दूसरा, थैंक्स गिविंग। वो हमेशा इस चीज को महसूस करते कि प्रेयर शुड इनकॉर्पोरेट ग्रेटिट्यूड और थैंक्स गिविंग। आप लोग देखें बहुत से दाऊद के साम्स में ऐसी बातें मिलेगी। इवन जोना व्हेन ही वाज इन द बेली ऑफ फिश, he didn't just cry, oh Lord get me out from this fish, बल्कि वो कहता है I will offer sacrifice unto thee with the voice of thanksgiving. He was praising in the belly of fish. ऐसा सिचुएशन जो कभी किसी के साथ नहीं। The part of prayer was the offering of thanks, of deep gratitude. एक रबी ने बड़ी अच्छी तरह उसको समड अप किया, लिखता है all prayers will someday be discontinued. क्या? तमाम दुआएं एक दिन सीज हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, except the prayers of thanksgiving. Except the prayer of thanksgiving. क्यों ऐसा होगा? क्योंकि the day will come when we will need nothing, we will have all. फिर क्या होना है? सिर्फ thanksgiving, फिर praise and worship. सो इसलिए दुआ के साथ थैंक्स गिविंग इज मोर इम्पोर्टेंट। एक और बात, गॉड्स होलीनेस, द सेंस कि जिसके पास हम जा रहे हैं ही सो होली, सो प्योर, द सेंस ऑफ गॉड्स होलीनेस, द सेंस ऑफ ऑ, द सेंस ऑफ रेवरेंस, बड़ी धीमी के साथ, बड़ी रेवरेंटली, एक हम जिसे कहते हैं थरथराते हुए कांपते हुए उसके हुजूर में हाजिर हो। यानी कि थरथराना कांपते हुए कि लॉर्ड तेरे हुजूर में आऊं और तेरी पाकीज़गी के हुजूर ठहर ना सकूं मैं, इतना तकद्दस आपका दिल भरा हो जब दुआ। मेरे जहन में एक वाक़या आता है इज़ाया चैप्टर 6 में, आपने पढ़ा होगा। प्रॉफिट के लफ्ज़ों से मुंह से लिप से कैसी बातें निकल। अचानक जब वो एक हैवीली विजन देखता है, God high and lifted up on his throne, and his train fills the temple, and the angels, the seraphim, gather about him, and he comes into the presence of God in a holy awe, and all he can say
What is that? I am a man of unclean lips. میرے لب ناپاک ہیں، میں نجس لب لوگوں میں بستا ہوں. جب اس پریزنس میں آیا تو اس کے ذہن میں اور کچھ نہیں، ایک ہی بات، I am unclean man and I have seen the Lord. اور اس کے اندر فیر پتہ سب سے بڑا کیا جاگا؟ I am undone. میں اب مر گیا کیونکہ میں نے خداوند یہوہ خدا کو دیکھ لیا ہے، ہولی گاڈ کو دیکھ لیا ہے. A sense of holiness. اور اسی طرح ایک ربیوں کی ٹیچنگ تھی، وہ کہتے تھے man must see himself when he go in his presence face to face with Shekinah glory. Another thing, confession of sin. When you go into his holiness, go into his presence to pray. خداوند جانتا ہے کہ ہم unclean ہیں، لیکن خدا چاہتا ہے کہ جب ہم اس کے پاس جائیں تو تھر تھراتے ہوئے، معافی مانگتے ہوئے، کنفیس کرتے ہوئے، Lord I am unclean, purge me, clean me, wash me، تاکہ میں واقعی جو کچھ میرے دل میں ہے، جو کچھ میں تجھے کہنا چاہتا ہوں، میں وہ کہہ سکوں. کیونکہ لکھا ہے نا، بدی میرے دل وچ جے ہووے ذرا، کدی بھی نہ میری سنے گا خدا. If you are going in the presence of God and the sin in your life and you haven't yet confessed, how can you think that God will listen to your prayer? زبور 26:6 میں داؤد کہتا ہے، میں بے گناہی میں اپنے ہاتھ دھوؤں گا اور اے خداوند میں تیرے مذبح کا طواف کروں گا. I will wash my hands in innocence and then go about thine altar. پھر میں تیرے مذبح پر جاؤں گا. Until I have dealt with my sin, I cannot come in your presence. خدا کے کلام میں لکھا ہے، خدا کے پہاڑ پر کون چلے گا؟ وہی جس کے ہاتھ صاف اور دل پیور ہے، پاک ہے. And when you weep over your sin, God hears your prayer. کسی نے کہا the gate of tears is never shut. If you can bring but nothing else to God, bring him to your tears. ہم اس طرح گیت گاتے ہیں ہنجواں دے نال، یعنی کہ یہ ہے ایک کنفیشن بھی ہے خدا کے سامنے حاضر ہونے کی. آپ کے آنسو نکل رہے ہیں، آپ ویپ کر رہے ہیں، تو خدا کہتا ہے برنگ یور ٹیئرس اینڈ آئی ول ہیئر یور پریئر. بلکہ جیمز میں ہم پڑھتے ہیں کہ راست باز ایماندار کی دعا سے بیمار بچ جائے گا. اگر اس نے گناہ بھی کیے ہوں تو وہ اٹھ کھڑا ہوگا، اس کی معافی ہو جائے گی. Wonderful. The Jews used to say that the prayer of a pure heart overturns the wrath of God as a rack overturns the grain. They believed that you could literally turn wrath into mercy with a pure heart. And so confession of sin was part of their prayer. Unselfishness. ایک اور بات تھی unselfishness. کیونکہ اگر ہم موسٹ آف لوگوں کی پریئر سنیں یا اپنی پریئر، تو اس میں زیادہ تر آئی مائی می اس طرح کی، مائی ڈیزائر، مائی پرابلم، مائی دس اینڈ دیٹ. لیکن جوش کی ایک تھاٹ تھی ان کی کہ پریئر شوڈ بی انسیلفش. دے ہیڈ اے سینس آف کمیونٹی. نیشن کی صورت میں خدا ان کے ساتھ ڈیل کرتا تھا، اینڈ دا نیشن واز اسینشل. دے اسٹل ایگزسٹ ایز اے نیشن اینڈ the pure Jewish people today even show how they clung to each other, preservation, the national identity. اور even دنیا میں تتر بتر ہو گئے آپ جوش کو دیکھیں، but they always kept their identity. میں اس کی ایگزامپل دیتا ہوں کہ کس طرح ایک ربی دعا کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ویری انٹرسٹنگ پریئر، کہتا ہے کہ hear not O Lord a prayer of a traveler. Very interesting. What is this saying? آپ ایک چھوٹی سی بات سمجھیں کہ اگر آپ نے ہالیڈے پہ جانا ہو کہیں تو واٹ یو تھنک؟ ون تھنگ، گڈ ویدر، شائنی ڈے، نو رین، نو اسٹارم، لائک دس، دیٹ یو ول تھنک آف. مے بی دیٹ از اے ون پرسن گوئنگ آن ہالیڈے، بٹ دیر از لاٹ آف ادر پیپل پریئنگ فار ریننگ، فار فیلڈس، فار گرینس. وہ کہتا ہے کہ ڈونٹ لسن دس کائنڈ آف پریئر. کہ یہ ایک ہمیں ٹیچنگ ہے کہ یو شوڈ ناٹ focus on himself. There are other people, they have lot of other needs. Finally, humility. An element of their prayer was a humility. A true Jew was coming into prayer was to submit himself to the will of God. اور یہ بہت important ہے، اور اس کی greatest example ہمیں کہاں پہ ملتی ہے؟
a greatest Jew ever lived on the earth. We can see that in Garden of Gethsemane. Humility. Not my will, but thy will be done. आपकी प्रेयर का एंड जो है, this is humility. Not my will, but thy will be done. That is the true heart of a prayer. Prayer is not asking God to do my will. It is bringing myself into conformity with his will. It is asking him to do his will and give me the grace to enjoy it. Do your will and give me grace to enjoy this, your will. अपनी मर्जी पूरी कर, लेकिन उसको enjoy करने के लिए मुझे उसकी grace दे, कि मैं उसको समझ सकूं कि that is the wonderful thing for my life. So ये था एक, कह सकते हैं जो असल prayer का मकसद था, एक हकीकी ट्रू जूस जो था उसकी सीरियस प्रेयर लाइफ में ये चीजें. लेकिन क्या हुआ? समथिंग वेंट रॉन्ग. द लाइफ एंड द टाइम ऑफ क्राइस्ट, दे वर नॉट डूइंग दैट. ऑल जो कुछ मैंने आपके सामने, दैट इज एक्चुअली हिस्टोरिकल व्यू है जो प्रेयर एक्चुअली ट्रू जू करते थे. अब खुदावंद जब चैप्टर 6 पे आते हैं तो वो उनको कहते हैं कि योर theology of prayer is hypocritical, your giving is hypocritical, your fasting is hypocritical, and even your prayer is hypocritical. रियाकारों की मानद तुम दुआ. They pray to be seen by men, and they are trying to gain things for their own ends, and they are trying to make a public display. That what they were doing those days when Jesus was very hard on them. Prayer life उनके लिए एक ritual, एक फार्मूला, एक repetition, एक रूटीन बन चुकी थी. That was not true from their heart. तो इस वजह से खुदावंद उनको कहते हैं कि जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानद मत बनो. अगर हम वर्स 5 में देखें दे लव टू प्रे, बड़ा अच्छा है, दे लव टू प्रे, बट व्हाई? टू सीन बाय मैन. देयर रियल मोटिव क्या था? कि लोग हमको देखें. तो खुदावंद उनको कहते हैं वर्स 5 में जब तुम दुआ करो, वर्स 6 में जब तुम दुआ करो, वर्स 7 में जब तुम दुआ करो. इट्स मीन खुदावंद ये नहीं कह रहे कि इफ यू प्रे. तो अजम्पशन क्या है? लॉर्ड वांट अस बिलीवर टू प्रे, कि जरूरी है हमें दुआ करना, लेकिन रियाकारों की मानद नहीं. जब दुआ करो तो लिखा बक बक ना करो. वेन रेपिटिशन, एक ग्रीक वर्ड से निकला है बाथारिजो, जिससे वर्ड निकला है बारबार्स, और इसी से वर्ड बना है बारबेरियंस. माइंडलेस वर्ड्स. वेन रेपिटिशन यानी कि रिपीटिंग सेम थिंग अगेन एंड अगेन अगेन. जिस तरह के हमने अगर एलिया की और बाल के पुजारियों की देखे तो वो बार बार दे वर रिपीटिंग थिंग्स. आई एम नॉट सेइंग द रिपीटिंग ऑफ प्रेयर इज रॉन्ग. जैसे कि पॉल के बारे में लिखा है 3 times सेम प्रेयर ही प्रेड टू गॉड. लॉर्ड रिमूव दिस प्रॉब्लम टू मी, लॉर्ड रिमूव दिस प्रॉब्लम फ्रॉम मी. और गार्डन ऑफ गेथसेमनी में खुदावन ने क्या कहा? 3 दफा से एक ही दुआ खुदावन ने बाप से की. अगर आप गौर करें तो लिखा 3 दफा एक ही दुआ की. वो क्या थी? बाप अगर हो सके तो ये प्याला टल जाए. रेपिटिशन इज डिफरेंट. अगर आपका दिल ऑनेस्ट है, यू कैन प्रे सेम प्रेयर अगेन एंड अगेन. फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली मेरी सिकनेस के दौरान आप भी दुआ कर रहे थे. बार बार मैंने शारन से पूछा व्हाट वाज यू प्रेइंग? आई एम जस्ट आस्किंग गॉड हील माय डैड, हील माय डैड, हील माय डैड. It's not repetition. That is honest prayer from heart. मैं वाइफ से पूछा तो वो कहती मेरे दिल में एक ही दुआ थी, लॉर्ड जब भी दुआ में all is well, all is well, Lord I know all is well. ये I'm not talking this repetition. ये सिस्टम में ऐसी दुआएं प्रिस्क्राइब्ड कर ली गई थी, बुक्स बनाई गई थी, रट्टे लगाए गए थे, रिचुअल बनाई गई थी. इवन जूश के पास हजारों किस्म की दुआएं थी. प्रेयर फॉर everything, going out for prayer, going in, बारिश के आने की, बारिश के जाने की, खाना खाने की, खाना खत्म करने की, सोने की दुआ, उठने की दुआ, इवन लड़ाई झगड़े से बाहर रहने की दुआ. हर एक चीज के लिए दुआ थी. आपने कोई चीज बाय की है उसकी दुआ थी, आपने एक चीज बेच दी है उसकी दुआ. लॉट ऑफ प्रेयर. तो उन्होंने उनको प्रिस्क्राइब कर लिया था, एक बुक्स वगैरह और रट्टे रटाए फार्मूले थे. This was not from the heart. If you want something, तो इसके लिए कौन सी दुआ? ये दुआ पढ़ लो बस. और इसी तरह का सिस्टम आप देखते हैं आज भी दुनिया में है. सिस्टम सेंटर्ड प्रेयर है. आप आज देखते हैं कैथोलिक में रोजरी है, और रोजरी का कहीं भी बाइबल के साथ कोई लिंक नहीं. और पता है कहाँ से ये आई है? What is the base
and the root of rosary it came from Buddhism. आप जाके सर्च करें बुद्धिज्म टू इस्लाम, और जब इस्लाम ने स्पेन पर कब्जा किया उस दौर में ये वेस्ट में फैल गई और कैथोलिक अडॉप्टेड। और आज भी देखें ये कैथोलिक हेल मेरी के नाम से इसको रिपीट करते दैट इज द लॉर्ड इज टॉकिंग, दैट इज जिसकी बिब्लिकल कोई ग्राउंड नहीं। उसमें देखें कई दफा लोगों का ध्यान किसी तरफ होता है तो बस जो समझते हैं कि हम इतनी दफा ये चीज दोहराएंगे, इतनी दफा ये कहेंगे तो शायद वी विल गेट समथिंग और विल गेट इनटू इट। दैट इज नॉट, दैट इज रेपिटेशन। तो लॉर्ड कहता है गैर कौमों की तरह बक बक मार। और लिखा है कि तुम समझते हो कि तुम्हारे ज्यादा बोलने से तुम्हारी ज्यादा सुनी जाएगी। आज पता है उसको किस तरह हम समझते हैं? लॉन्ग प्रेयर, बड़ी बड़ी लंबी लंबी दुआएं। समटाइम वी गिव इन ऑल इंफॉर्मेशन ही लाइक ही डजंट नो अबाउट अस। खुदावंद कहता है व्हेन यू कम टू मी ब्रिंग योर हार्ट, ब्रिंग योर हार्ट, प्रे विद द हार्ट। एक पास्टर की मैं बात सुन रहा था तो कहने क्या कि एक प्रेयर मीटिंग हमने स्टार्ट की तो वहाँ पे कभी कभी किसी शख्स ने इतना टाइम ले लेना कि बाकी टाइम किसी को मिलती नहीं था दुआ करने की। तो फिर उसने उन्हें कहा नेक्स्ट टाइम आपने दुआ करनी है ना तो फर्स्ट 3 मिनट वी विल प्रे विद यू, नेक्स्ट 3 मिनट वी विल प्रे फॉर यू, एंड नेक्स्ट 3 मिनट we will pray against you. That's just joke. क्यों खुदावंद कहता है कि टू मच इन्फॉर्मेशन नहीं मुझे चाहिए, लॉन्ग प्रेयर नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे बोलने से पहले ही जानता हूं कि किन चीजों की तुम्हें जरूरत है। आई नो व्हाट इज योर नीड। बल्कि लिखा है जब तू दुआ करे तो क्या क्या अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से पोशीदगी में दुआ कर। प्रेयर इन सीक्रेट। ये जिस कोठरी का जिक्र किया इसका जो मीनिंग्स, योर मोस्ट सीक्रेट प्लेस, एक ऐसी प्लेस जो तुम्हारी एक खास जगह है जहां पर तुम किसी को नहीं आने देते। दैट इज योर प्रेशियस प्लेस। मे बी वहां पे तुम्हारा ट्रेजर है, वहां पे तुम्हारी खास चीजें हैं, किसी को आप वहां पे नहीं लेके आते। यू डोंट वांट एनीबॉडी टू नो दैट प्लेस। दैट इज एक्चुअली गो इन दैट प्लेस इन योर चैम्बर, गो इनटू योर चैम्बर, जहां पोशीदगी में खुदा से कह रहा है आई कैन इवन लिसन in that secret, मैं वहां भी मौजूद हूंगा and I can listen you pray over there. सीक्रेट में प्रेयर करने का फायदा क्या है? In secret I can even tell those things, वो बातें भी मैं खुदा को बता सकता हूं जो मैं किसी को भी बता सकता। साथ में ये कहने की जरूरत नहीं मुझे खुदा की, प्लीज डोंट टेल एनीबॉडी, ही विल नेवर टेल एनीबॉडी। दैट इज द ग्रेट फ्रेंड वी हैव इन क्राइस्ट एंड आई कैन पोर आउट माई हार्ट। सब कुछ मैं उसके हजूर में खुले दिल से ढेल सकता हूँ, आंसुओं के साथ ढेल सकता हूँ। ये नहीं कि यार लोग देख के क्या कहेंगे क्रेजी हो गया। आई कैन जस्ट ओपन माई सेल्फ टू हिम। सो व्हाट इज प्रेयर देन? असल में खुदावंद का कलाम कहता है इट इज नॉट गेटिंग थिंग, इट इज नॉट फोर्सिंग गॉड टू डू समथिंग, इट इज जस्ट ओपनिंग माई सोल टू वन हु केयर्स एंड दैट communes with me. Prayer is saying, oh God, oh Lord, I come to you with the needs of my heart. Display your glory. Show your glory. Prayer एक ऐसी बात है कि खुदा को हम एक चांस दे रहे हैं to manifest his power, to manifest his majesty, to manifest his might, to manifest his love and his providence and his care and his concern about it. What is Jesus saying? He is saying when you pray, क्या करो? जब भी दुआ करो, इवन व्हाट काइंड ऑफ मिजरी, प्रॉब्लम, डिफिकल्टी यू आर गोइंग थ्रू, ये मोटिव के साथ खुदा के पास जाओ। लॉर्ड ग्लोरीफाई योरसेल्फ, आई वांट यू टू बी ग्लोरीफाई। आखिर में एक और बात कहना चाहता हूँ कि एक क्रिश्चियन लाइफ का टेस्ट खुदा जब करता है तो उसके लिए 2 चीजें वो देखना चाहता है। फर्स्ट, स्टडी ऑफ द वर्ड एंड प्रेयर लाइफ।